Chapter 14 The Very Hungry Caterpillar. Sessions Objective: Enjoy rhyme, follow simple instructions in English, discuss on title of story, answer simple questions based on the story, retell the story in English or mother tongue, shaping imagination through drawing or writing, relate story with personal experiences, learn new vocabulary. One small rhyme, एक छोटी सी राइम करें. ओके, प्लीज स्टैंड अप. पहले इस राइम में दीदी गाएंगी और उसके बाद में हम गाएंगे. तो पहले कौन गाएगा? दीदी गाएगी, ठीक है. और जैसे दीदी एक्शन करेगी वैसे हम लोग भी एक्शन करेंगे. रेडी? कैन वी स्टार्ट? कैटरपिलर कैटरपिलर wriggle 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 caterpillar caterpillar wriggle 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 through the long long grass. Green and furry, green and furry. That's what you are. Caterpillar, caterpillar. Caterpillar, caterpillar. You go slow, you go slow. Because you can't go fast. Caterpillar, caterpillar. Wriggle, 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 wriggle. Caterpillar, caterpillar. Wriggle, 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 wriggle. Through the long, long grass. Through the long, long grass. Okay, now sit down. Yay, very good. कौन था इस राइम में? कौन आया था? कैसा दिखता है कैटरपिलर? ऐसे 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 करके चलता है. क्या था उसके लिए इंग्लिश में? हाँ, ऐसे तो मछली भी जाती है. पर उसके लिए दीदी ने क्या बोला था राइम में? ग्रास. ग्रास क्या होती है? घास पे वो क्या करता है? चलता कैसे है? पर उसके लिए इंग्लिश में अभी हमने कैटरपिलर कैटरपिलर फिर क्या किया था? ग्रास के ऊपर पहुंच गया. पर वो ऐसे गया, उसको दीदी ने क्या बोला था? रिगल 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 रिगल. हाँ, ऐसे ऐसे करके चल रहा था ना, टुक टुक करके चल रहा था. आपने देखा है कहीं कैटरपिलर? किसी ने? आपने देखा है? कहाँ पे देखा है? जा रहे थे. और किसी ने देखा है? कहाँ पे देखा है? छत पे देखा है. क्या कर रहा था वो? क्या बताया अभी दीदी ने? रेंगने के लिए क्या था? कैटरपिलर. और कौन रेंग रहा था? कैटरपिलर. उसको क्या बोला अभी दीदी ने? रिगल रिगल. अच्छा, कैटरपिलर कहाँ रहता है? घास में, पेड़ पे.
पत्ते में रहता है, बिल में रहता है। आपने देखा है पत्ते? कैटरपिलर। अच्छा बताओ, ये कुछ ऐसा दिखता है क्या? यही वाला था। और ये ऐसे ऐसे करके क्या करता है? रिगल रिगल रिगल। वेरी गुड। तो आज अभी हम एक स्टोरी सुनेंगे। वो किसकी है? कैटरपिलर की। इस कहानी का नाम है द वेरी हंग्री कैटरपिलर। द वेरी हंग्री कैटरपिलर। बहुत ध्यान से सब कहानी सुनना, ठीक है? और दीदी उसके बाद में आप लोगों से कहानी सुनेगी। अब बहुत ध्यान से सुनना। इन द लाइट ऑफ द मून a little egg lay on a leaf. A little egg lay on a leaf. On bright Sunday morning, out of the egg came a very hungry caterpillar. He started to look for some food. He started to look for some food. And on Monday, he ate one pineapple. On Monday, what he ate? He ate one pineapple. वेरी गुड। मंडे को क्या खाया? ऑन ट्यूसडे ही एट 2 mangoes. But he was still hungry. He was still hungry. On Wednesday he ate 3 guavas. But he was still hungry. But he was still hungry. On Thursday he ate 4 oranges. But he was still hungry. But he was still hungry. On Friday he ate 5 bananas. But he was still hungry. On Saturday he ate 1 pumpkin. He ate 1 pumpkin. 1 ice cream. 1 loaf of bread. Bread और खाई इसने। ब्रेड खाता है। ब्रेड खाओ। 1 toffee. 1 laddu. That night he had a stomachache. Oh, he had a stomachache. Oh, what he had? पेट में दर्द हुआ. He became very sad. On Sunday, he again
ate a very nice green leaf. And that night he felt much better, and caterpillar was very fine now. When he went inside cocoon, he wasn't a very small hungry caterpillar. He was a very big caterpillar. He was a very big caterpillar. He went inside cocoon and he stayed there for 2 weeks. And then you know what he came out as? फिर वो क्या बन के आया होगा? कुकून में रहने के बाद 2 हफ्ते he came out as a beautiful, colorful butterfly. I am a little butterfly, I love to fly. I am a little butterfly, I love to fly. क्या बन के आया वो बाद में? बटरफ्लाई. क्या हुआ इस कहानी में? One by one. Yes, Monica. वो क्या खाता था और किस किस दिन खाता था? अच्छा, फिर उसको क्या हुआ था एक दिन? वो खूब सारी चीजें खा खा के उसके पेट में दर्द होने लगे हैं, तो वो फिर है ना थोड़ी देर भीड़ में रहने लगे हैं, तो फिर है ना वो एक मोटा सा था और बहुत बड़ा कैटरपिलर बन गया, फिर बाद में और भी रहता है बटरफ्लाई बन गया. ओके. अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसके पेट में दर्द क्यों हुआ इतनी तेज? ओके, तो हमें पेट में दर्द कब होता है? हम बहुत सारी चीजें कुछ गड़बड़ चीजें खा लेते तब. जैसे आप कब होता है? एसिडिटी होती है तब, और एसिडिटी होती है तब भी पेट में दर्द होता है. एसिडिटी कब होने लगती है? कब होता है हमको बहुत तेज? जब हम बोलते हैं ना दीदी आज पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं क्लास में नहीं बैठूंगी. जैसे टॉफी खाने से पेट में दर्द होता है. कब होता है हमारे पेट में? हाँ, कोई गंदी टॉफी खा लेते हैं तब, कोई गंदा ऐसे सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं तब, है ना? तो क्या होता है हमारे पेट में भी दर्द होता है. फिर इस कैटरपिलर का पेट दर्द कब ठीक हुआ? बताओ कब ठीक हुआ उसका? पर पत्ती खाने से ही उसका पेट दर्द क्यों ठीक हुआ? मनीषा बताएगी. हाँ, क्यों हुआ था? बता, सही बताएगी. बोल. क्यों मिटा? पत्ती खाने से ही क्यों मिटा? क्योंकि अच्छा, तलविंदर ने एक बात बोली है अभी. क्या होता है? वो हमेशा ही पत्ती खाता है. इसका मतलब पत्ती क्या है? उसका खाना. पर उसने क्या क्या खा लिया था? टॉफी, बनाना, लड्डू, इतनी चीजें खा ली थी, इसलिए उसको क्या हुआ था? स्टमक एक. क्या हुआ था? क्या हुआ था? सब बोलो. और जब स्टमक एक होता है तो हम कैसे बैठते हैं क्लास में? कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठ जाते हैं ना क्लास, ध्यान नहीं पड़ना मुझे, करते हो ना ऐसे. तो कैटरपिलर को भी ऐसा ही हुआ. फिर पत्ती खाने से क्या हो गया? वो बिल्कुल ठीक हो गया. और फिर वो क्या बन गया? हाँ, फिर वो क्या बना? मोटा कैटरपिलर. और फिर वो बाहर निकला कुकून में से तो क्या बन के आया? वेरी गुड. अच्छा, मुझे ये बताओ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसने मंडे को क्या खाया था? पाइनएप्पल. मंडे को क्या खाया था? अच्छा, मंडे के बाद क्या आएगा?
ट्यूसडे आएगा पक्का। हाँ, ट्यूसडे को उसने क्या खाया था? ट्यूसडे को क्या खाया था? नहीं, ट्यूसडे को उसने 2 और वेंसडे को उसने क्या खाया था? 3 गुआवाज। फिर उसने थर्सडे को क्या खाया था? 4 ऑरेंजेस। क्या खाए थे? फिर फ्राइडे को उसने क्या खाया था? कितने बनाना खाए थे? अच्छा, उसने सैटरडे को क्या खाया था? ये बताएंगे। सैटरडे को क्या खाया था विशाल? और लड्डू खाया था, और भी तो कुछ खाया था। और कुछ नहीं खाया था? टॉफी खाई थी। और क्या खाया था? आइसक्रीम। आइसक्रीम पत्ती फिर संडे को खाई थी। अब हम एक खेल खेलेंगे एंड इट्स अ साइलेंट गेम। साइलेंट गेम मीन्स इसका मतलब हमें बिल्कुल भी अब आवाज नहीं करनी। कैन यू प्लीज गिव मी दोस कार्ड्स? ये जो कार्ड्स वहां पे लगे वो दोगे दीदी को एक बार? यस यस, थैंक यू। And now what I am going to do, I will call your name and you have to come here and stand here. Okay? जिसका दीदी नाम लेगी वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लाइन से खड़े होना है। विशाल, अजय, हितेंद्र, आ जाओ। मोनिका, विष्णु एंड प्रियंका। अब दीदी क्या देगी आपको? दीदी क्या देगी आपको? और दीदी किसी को भी कोई सा भी कार्ड देगी। अब हम बोलेंगे नहीं, किसी को भी दीदी कोई सा भी कार्ड दे देगी। आपको इनको क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हाँ, बट यू डोंट हैव टू स्पीक नाउ। अब हम क्या नहीं करेंगे? बिल्कुल चुप रहेंगे। Now you don't have to speak, but you have to stand in a correct sequence. Please look at your card and your friend's card and stand in a correct sequence. Do not speak. No, 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 no. You can't speak. You have to look at each other's card and make a proper sequence. एक दूसरे का कार्ड देख लो और लाइन से खड़े होते जाओ. Go. Move fast. Show your cards. Show your cards. ऐसे पकड़ो. Yes, like this. Okay. Is it correct? Is it correct? Okay. It says. कोई बताएगा ये सही है क्या? मनीषा. Okay. Let them correct it once. Let them correct it. They have to see. एक दूसरे का कार्ड देखो सही खड़े या नहीं खड़े. देखो एक दूसरे का कार्ड. Yes, now you can help them. अब आप उनको, अच्छा अब आप उनको मदद कर सकते हो. करो. अच्छा अभी ठीक है क्या? सब बताओ. अच्छा एक मिनट, आपने इधर से भी बताओ ये सही खड़े हैं क्या? अभी सही है बिल्कुल. पूरी क्लास
पास बताएगी, दीदी को तो कुछ भी नहीं पता है, अभी दीदी को समझ में ही नहीं आ रहा है सही खड़े हैं या नहीं। सही है अब? अच्छा दीदी अभी ठीक है? आप अपना कार्ड पढ़ोगे, क्या लिखा है आपके कार्ड पे? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे बोलो दोबारा। आपका फ्राइडे, वेरी गुड। फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे, संडे। अब वापस से अपना कार्ड ऐसे लेके खड़े हो। नाउ आई विल कॉल योर नेम एंड यू हैव टू कम। सी, अब ये लोग यहाँ पे खड़े हैं सीक्वेंस में, यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी होंगी। कैटरपिलर का खाना रखा है, आप आओगे, कैटरपिलर का खाना लोगे और जो भी उसने मंडे को खाया था वो मंडे के आगे आके ऐसे खड़ा हो जाएगा और ये कार्ड क्या करेगा? ऊपर। मतलब कैटरपिलर ने मंडे को जो भी खाया है वो कार्ड और ये मंडे। वेरी गुड, गॉट इट? सबको समझ में आ गया? स्टार्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे दीदी ने बहुत सारी चीजें बिखेर दी हैं नीचे, आपको आना है और सामान उठा के जो भी उसने मंडे को खाया था वो मंडे के साथ में, जो ट्यूसडे को खाया है वो ट्यूसडे के साथ में। खुशी आएगी? कम। व्हाट ही एट ऑन मंडे? व्हाट ही एट ऑन मंडे? let her choose, let her choose. What he ate on Monday? क्या खाया था बेटा उसने मंडे को? बहुत सारी चीजें रखी है यहाँ पे। हाँ, what he ate? हाँ, पत्ती भी उठा लेंगे। What he ate on Monday? देख इतनी सारी चीजें रखी, क्या खाया था उसने मंडे को? हाँ, दीपक हेल्प कर रहा है। पाइनएप्पल। कहाँ है पाइनएप्पल? वेरी गुड। अब मंडे कहाँ है? जाओ मंडे के पास। वेरी गुड। नाउ विकास विल कम। विकास उसने ट्यूसडे को क्या खाया था? वी डोंट हैव टू स्पीक। ट्यूसडे को क्या खाया था? वेरी गुड। मैंगो लो, बैठ जाओ। नाउ दीपक, वेंसडे को क्या खाया था? हाँ, वेंसडे को क्या खाया था? नो, लेट हिम सर्च, बेटा रख दो, कोई बात नहीं, लीव इट। आप ये देखो, किसी का सुनो नहीं, सब आपकी मदद कर रहे हैं ना, पर आप देखो आपने स्टोरी जो सुनी थी उसमें वेंसडे को उसने क्या खाया है? What he ate on Wednesday? What is this? अच्छा, what is this? Pumpkin कब खाया था उसने? सबसे बाद में। तो गुआवा कहाँ है इसमें? हाँ। What he ate on Thursday? थर्सडे को क्या खाया था? यस। थर्सडे को क्या खाया था? 4 चीजें खाई थी। लेट हर चूज। राज, वेट बेटा। हाँ बताओ। यस, वेरी गुड मनीषा। गो। व्हाट ही एट ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को क्या खाया था? देख यहाँ पे क्या खाया था फ्राइडे को? And toffee also. Take toffee also. What else? Laddu. Take laddu also. तलविंदर ने बहुत सारा सामान लिया है। Now, what he ate on Sunday? राकेश, what he ate on Sunday? और संडे को ये खाके उसका पेट क्या हो गया था? बिल्कुल ठीक हो गया था।
ये क्या हो गया था, इसका पेट बिल्कुल ठीक हो गया था. ओके, नाउ लीव दिस मटेरियल हेयर एंड गो बैक टू योर प्लेस. इसको यहीं रखो और जाओ अपनी जगह पे. आएगा अभी बेटा. अभी हमने बताओ किसकी स्टोरी पढ़ी थी. ओके, द वेरी हंग्री कैटरपिलर. द वेरी हंग्री कैटरपिलर. अब दीदी नहीं बोलेगी, आप लोगों को बोलना है. दीदी सिर्फ पॉइंट करेगी. अच्छा, इस स्टोरी में क्या हुआ था. कैटरपिलर ने. अच्छा, ये बताओ दीदी अभी जो बोर्ड पे लिख रही है ये क्या है. मंडे. वेरी गुड. मंडे को उसने क्या खाया था. वन pineapple. One pineapple. Now all of you take out your English copy. And start writing with Didi. Okay? Take out your copy and start writing with Didi. Yes. Okay, what he ate on Tuesday? कितने मैंगो खाए थे. 2 मैंगोज. हाँ लिखो बेटा. एवरीथिंग. What he ate on Wednesday? वेंसडे को क्या खाया था. 3 2 मैंगोज तो खा लिए. वेंसडे को क्या खाया. 3 गुआवास. क्या खाए थे. अच्छा, थर्सडे को क्या खाया था. थर्सडे को 4 1 2 3 4 क्या खाए थे. 4 ऑरेंजेस. ये रघु आवाज. Copy this, then I will write. सबका पेज ऐसा ही दिख रहा है. So we are going to read. दीदी पढ़ेगी और आप क्या करोगे, उंगली लगा के दीदी के साथ पढ़ोगे. The very hungry caterpillar. The very hungry caterpillar. अब नीचे से पढ़ो. In the light of the moon, a little egg lay on a leaf. One Sunday morning, the warm sun came up out of the egg came a
tiny and very hungry caterpillar. Turn the page. Now turn the page. Next page. He started to look for some food. On Monday, he ate one pineapple. But he was still hungry. On Tuesday, he ate two mangoes, but he was still hungry. Now turn the page. आप सब इस वाले पेज पे आ जाओ, इस वाले पेज पे, हाँ लास्ट पे. He built a small house called cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and he was a beautiful butterfly. वेरी गुड. हमने अभी ये स्टोरी पढ़ी ना, अभी दीदी ने जो आपको ये स्टोरी सुनाई थी ना, अभी हमने उस स्टोरी को पढ़ा है. अब दीदी जिससे पूछेगी वही बताएगा, ठीक है. दीदी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी स्मॉल क्विज. दीदी कुछ बोर्ड पे लिखेगी और बोर्ड पे लिखने के बाद दीदी पूछेगी क्या लिखा है, ठीक है. और अभी हमने फिंगर रीडिंग की थी तो पढ़ा भी था ना उन चीजों को. अभी दीदी पूछेगी वो चीज क्या है. सो एंड जिसका नाम लेगी वही बताना, ओके. अजय, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? अजय, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? Pineapple. Very good. Now Anjali will tell me what is this? Orange. Very good. Now Deepak will tell me what is this? Mango. दीपक बताए. MONDAY. क्या बन? मंडे. वेरी गुड. अच्छा दीपक एक और बताओ. ये क्या है? ये क्या है? जी. गुआवा. वेरी गुड. ये क्या है? वेरी गुड. नाउ खुशी विल टेल मी व्हाट इज दिस? अच्छा खुशी ये पढ़, इतना पढ़. मैंगो. क्या ये? मैंगो. वेरी गुड. अच्छा खुशी ये बता ये क्या है? ये क्या है? अच्छा वो किस एक लीफ में क्या रखा था? एक पत्ती के ऊपर क्या रखा था? एक एग. क्या है ये? एग. वेरी गुड. तो अभी हमने क्या पढ़ी? हाँ
एक स्टोरी पढ़ी ना अभी हमने। अब आप में से कोई दीदी को आके पढ़ के बता सकता है कि ये कहानी हमने पढ़ी है, जैसे दीदी ने पढ़ाई थी? बताएगी? आ जाओ, कम। ओके, सो तानिया इज गोइंग टू रीड द सेम स्टोरी. यू कैन ब्रिंग योर पेपर, तानिया. You can bring your paper and you can read from this. Okay? हाँ. The very hungry caterpillar. very good. In the okay. Let हाँ. for the moon a Little egg lie on a leaf. very good. One Sunday, Morning the warm sun came up out for the egg came a tiny and very hungry caterpillar. very good. Clap for her. So कल आप लोग आके मुझे जैसे दीदी ने आज कहानी सुनाई वैसे सुनाओगे? ओके, सो कम प्रिपेयर्ड. दीदी आपको ये पेपर दे रही है ना, सब तैयारी करके आना और कर दीदी को ऐसे ही कहानी सुनाना. घर लेके जाओ, ठीक है? थैंक यू. अभी जो आपने स्टोरी टेलिंग का वीडियो देखा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर आइए हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं. कुछ ऐसे पक्ष बहुत जरूरी हैं स्टोरी टेलिंग के, जिन्हें आपने वहां पे देखा भी होगा, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन हेल्प टू बिल्ड देयर इंटरेस्ट. कहानी में बहुत सारी चीजें आई थी जो अलग अलग संदर्भ में हुई थी, अलग अलग प्रकार की थी. उनमें बच्चों को भिन्नता बताने के लिए वॉइस में आवाज का उतार चढ़ाव रखा गया. आवाज के उतार चढ़ाव से बच्चों को कुछ ऐसी चीजें थी जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट में है, पेट दर्द है, वो उसको वैसे देख नहीं सकते हैं पर महसूस कर रहे हैं. तो उसमें जब वॉइस मॉड्यूलेशन किया तो बच्चों को उसी रूप से समझ में आया. जैसे कैटरपिलर खाना खा रहा है, तो उस समय वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों के लिए कैसे बताऊं कि अब कैटरपिलर कैसे खाना खा रहा है. मैंने सोचा अगर मैं इसमें आवाज करके बताऊंगी तो बच्चों की उसमें रुचि भी आएगी और बच्चे उस स्टोरी को बिल्कुल अपने संदर्भ में जोड़ सकेंगे. Repetition of story in different ways help them to memorize it. एक कहानी हमने ली थी The Very Hungry Caterpillar. उसको हमने अलग अलग तरीके से सुनाने की कोशिश की और बच्चों से भी सुनने की कोशिश की, ताकि उस कहानी के महत्वपूर्ण पात्र पक्ष उनको बहुत ठीक से याद हो जाएं. और इसी के साथ जो हमारे मुख्य कॉन्सेप्ट थे सिखाने वाले, नंबर नेम, नेम ऑफ वीकडेज, नेम ऑफ फ्रूट्स और कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसको वो बहुत आसानी से पकड़ पाए. इसीलिए हमने बहुत अलग अलग तरीके लिए, जिसमें पहला तरीका था शिक्षक द्वारा प्रॉप के साथ में कहानी सुनाना, दूसरा तरीका था कहानी की समरी को बच्चों के साथ में शेयर करना, तीसरा तरीका था बोर्ड पे लेखन के माध्यम से कहानी की सीक्वेंस को समझना, और चौथा तरीका था बच्चों द्वारा कहानी को पढ़ा जाना. फिंगर रीडिंग हेल्प्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स. जब हमने फिंगर रीडिंग की तब इसमें हमने ये देखा कि कहानी बच्चों ने सुनी तो है, पर अभी जो उसका प्रिंट का जो कॉन्सेप्ट है उससे बच्चे इतना अवगत नहीं हो पाए हैं. वो पक्ष महत्वपूर्ण है और वो छूट ना जाए, इसलिए हमने रीडिंग को भी कहानी सुनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष माना और बच्चों के साथ में कहानी को उंगली वाचन करते हुए आगे चले, जिससे कि बच्चे कुछ कीवर्ड्स हैं उसको पहचानने लग जाएं और कहानी जो सुनी थी उसको लिखित
रूप में भी समझ पाए। क्वेश्चन आस्क्ड इन बिटवीन हेल्प देम टू कनेक्ट द स्टोरी टू देयर एक्सपीरियंसेस। कहानी सुनाने के साथ में बहुत जरूरी समझा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे सवाल उठाना वाजिब है कि क्या सही में कैटरपिलर को पेट में दर्द होता है क्या वास्तव में, और जैसा कैटरपिलर का पेट दर्द कैसे ठीक हुआ। फिर तो कुछ ऐसे सवाल पूछने से बच्चों ने उस पे चिंतन किया और ये सोचा कि हमें पेट दर्द कब होता है, या क्या ये कहानी हमें अच्छी लगी या नहीं लगी। तो एक कहानी को क्रिटिक करना और एक उस पे गहराई में जाके चिंतन करना, उसको अपनी निजी जिंदगी से जोड़ना, ये मेरे लिए एक उद्देश्य रहा था, जिसके लिए मैंने बीच बीच में कुछ सवाल पूछे। इम्प्रोवाइजेशन इन प्लान वॉज डन बाय सीकिंग देयर रिस्पॉन्स ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। ये जो आपने पूरी स्टोरी टेलिंग देखी, ये 3 खंड में विभाजित की गई थी, जिसमें हर दिवस में मैंने ये देखा कि ऐसा मुझे कौन सा फीडबैक मिल रहा है जो मुझे अपने अगले प्लान को बदलने में मदद करता है। जैसे मैंने सेकंड डे पे जो एक्टिविटी करवाई, उसमें मैंने देखा कि अब बच्चे कहानी पढ़ना तो समझ गए हैं, सुन भी चुके हैं, पढ़ना भी समझ गए हैं, पर मुझे प्लान में ये बदलाव करना पड़ेगा कि क्या वो पढ़ के कहानियां मुझे सुना सकते हैं या नहीं। तो अपने प्लान को निरंतर उसका भी आकलन करते हुए चलना, बच्चों की स्थिति का भी आकलन करते हुए चलना कि क्या मेरे बच्चे कहानी उस रूप में समझ पा रहे हैं जिस रूप में मैं एक बार उसको सोच के आई हूं, पहली बात। दूसरी चीज ये कि क्या वो कहानी के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो मैं उन्हें संप्रेषित करना चाहती हूँ वहां तक मेरी क्लास मूव कर रही है या नहीं। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए मुझे अपने प्लान में बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई, जो मेरे प्लान में तीसरे दिन में मैंने देखा कि अब मुझे बच्चों से भी कहानी सुननी चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि बच्चों की इस पे स्थिति क्या निकल के आई है। फिर मैंने देखा कि इसमें लिखित कार्य कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि मैं सभी बच्चों के संदर्भ में बोल सकूं कि हाँ, इनको कहानी किसी एक हद तक समझ में आई है। इसी के लिए मैंने उनको एक वर्कशीट दी। उस वर्कशीट में आपने देखा होगा कि बच्चों का जो कल्पना का जो दायरा था वो कितना बढ़ गया, और उसमें उन्होंने देखा कि कैटरपिलर एक एक चीज खा रहा है तो वो उनके पेट में जा रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि हम जिस तरीके से बताना चाह रहे थे उससे कई व्यापक रूप में बच्चों ने उसको समझा और अपनी जिंदगी से रिलेट किया। धन्यवाद। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये स्टोरी द वेरी हंग्री कैटरपिलर का वीडियो है, जो कि सनबीम क्लास 2 टेक्स्ट बुक में है। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो मेरे पाठ को पढ़ाने के उद्देश्य थे वो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले एक राइम लेना जो कि पाठ से ही जुड़ी हुई है, इसमें मैंने कैटरपिलर राइम ली थी। उसके बाद था कि बच्चे कहानी को सुनकर समझ पाएँ कि कहानी की सीक्वेंस क्या है और कहानी में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको याद कर पाएँ। फिर ये था कि बच्चे मेरे साथ में जो कीवर्ड्स याद किए हैं, जो अभी हमने सिर्फ ऐसे कहानी में सुने थे, उनको एक प्रिंटेड फॉर्म में भी समझ पाएँ, जिसके लिए हमने पूरी एक कहानी उंगली वाचन किया था। और जो मेरा चौथा उद्देश्य था वो ये था कि बच्चे खुद भी कहानी को बोल पाएँ। तो आपने इसमें देखा होगा जब मैं राइम करा रही थी तब मैंने कुछ वर्ड्स पे फोकस किया, बहुत एक्शन के साथ में राइम कराई, और एक रिगल पे फोकस किया और बच्चों से ही निकलवाया कि हमारी कहानी किसके बारे में होगी। तो बच्चे बहुत आसानी से समझ पाए, क्योंकि कैटरपिलर बार बार आ रहा था तो बच्चों ने बताया कि कैटरपिलर की कहानी है और कैटरपिलर ग्रास में कैसे चलता है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम बच्चों से ही कैसे निकलवा लें, और बच्चे उसको बहुत आसानी से याद रख पाते हैं जब उससे एसोसिएटेड कोई एक एक्शन जुड़ा हुआ होता है। फिर जब हमने कहानी स्टार्ट की थी तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरा ये था कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसमें से जाने कि बच्चों को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पहले से कैटरपिलर के बारे में पता है। तो उन्होंने जो कहानी में सुनाने जा रही थी उसके बारे में बहुत कुछ खुद ही बता दिया कि कैटरपिलर के बारे में होगी, हंग्री है तो मतलब उसको कुछ खाने के लिए होगी। तो यहाँ पे ये देखना कि एक टाइटल से बच्चे कैसे अपने आप कहानी को आगे लेकर जा रहे थे। फिर जब मैंने कहानी सुनाना चालू किया तब मैंने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस किया, बट आई एम स्टिल हंग्री। तो जो स्टिल हंग्री वाला जो था वो हर एक के साथ आ रहा था। ऑन मंडे ही एट 1 पाइनएप्पल बट ही वॉज स्टिल हंग्री। तो टूवर्ड्स सैटरडे मेरा ये एम था कि बच्चे खुद बोलने लग जाएं, जो आपने देखा भी होगा कि इस क्लास में बच्चे आसानी से बोलने लगे थे, बट ही वॉज स्टिल हंग्री। फिर कुछ जो वर्ड्स थे जो कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, जैसे स्टमक एक, दिस इज़ अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। अब उसको बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में और उनकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेट करने के लिए मुझे एक्शन करने थे, अपने वॉइस में उतार चढ़ाव करना था, जिससे कि बच्चे समझ पाएँ कि स्टमक एक का अर्थ होता क्या है।
तो जैसे ही मैंने पेट पे हाथ रख के किया तो कुछ बच्चे थे जो स्टमक एक, क्योंकि पहली बार सुन रहे थे, बोल नहीं पाए थे, बट इट वॉज अ वेरी गुड थिंग कि वो रिलेट कर पाए, स्टमक एक कुछ शब्द है और इसके लिए दीदी ने ये एक्शन किया है। फिर जब मैंने ये देखा कि कहानी को क्रम से याद रखना भी अपने आप में एक बहुत प्राइमरी चीज़ होती है, जो किसी भी कहानी में, लेखन में भी और सुनने के ध्यान रखने के भी जो बहुत महत्वपूर्ण चरण होते हैं, उसमें मैंने बच्चों से ही निकलवाया कि क्या किया था उसने मंडे को। तो पहले तो ये जानना कि क्या बच्चे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को भी पहचान पा रहे हैं या नहीं, उसके क्रम को समझ पाते हैं या नहीं, और फिर ये कि वो कहानी में जो बातें आई थी उसको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे से कितना रिलेट कर पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी चुनौती हुई थी, क्योंकि पहली बार कहानी सुनते ही उसको एक्टिविटी को कर रहे थे, पर फिर भी ये देखना कि क्लास में आपस में बच्चे एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। इस समय पे टीचर को एक बैक सीट ले लेना चाहिए कि यहाँ पे अब मैं क्लास को फ्री छोड़ूं कि दे कैन हेल्प ईच अदर एंड सम ऑफ देम हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, सो दे कैन हेल्प देयर क्लासमेट्स। और यहाँ पे मैंने देखा भी कि कुछ बच्चे थे वो बहुत आराम से अपने फ्रेंड्स की मदद कर रहे थे, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमेशा टीचर अपने रोल में ना रह के एक पीछे वाले रोल में जाए और बच्चों को फ्री छोड़ के उनको एक दूसरे की मदद करने दे। फिर इसके बाद मैंने ये देखा कि अभी तक जो हमारा काम रहा था वो सब मौखिक रहा था, लिखित में सिर्फ चित्र आए थे, बाकी कुछ लिखित काम रहा नहीं था। तो इसके लिए मैंने कुछ बोर्ड पे लेखन का कार्य किया, जिससे कि मेरी स्किल्स में इंटीग्रेशन हो और जो बच्चे सुन रहे हैं उसी को वो लेखन में भी देख रहे हैं कि मंडे तो मंडे ऐसा लिखा हुआ है और उसको ऐसे लिख रहे हैं, मंडे को उसने ये किया था, पाइनएप्पल खाया था, तो पाइनएप्पल का एक जो प्रिंटेड फॉर्म में जो है उसको वो रिलेट करते हुए चल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी और बच्चों से भी उसको अपनी कॉपी में लिखवाया, ताकि उन्हें वो चीज़ धीरे धीरे ध्यान रहने लगे और वो समझने लगे कि पाइनएप्पल का चित्र ऐसा है और उसका लेखन में चित्र इस तरीके से निकल कर आता है। फिर यहाँ पे मेरा दूसरा ये था कि उंगली वाचन, फिंगर रीडिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जब बच्चे पढ़ना सीखते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे बच्चों को ही बोला कि अब हम जो स्टोरी पढ़ेंगे पहले दीदी पढ़ेगी फिर आप पढ़ोगे। इससे उनको कुछ जो वर्ड्स थे जो उनके लिए नए आ रहे थे उनको लेटर एंड साउंड एसोसिएट करने में टीचर ने बहुत हेल्प की थी। फिर धीरे धीरे हमारी एक ऐसी स्टेज आई जिसमें मैंने कुछ बच्चों को बोला जो मुझे लगा कि जो थोड़ा सा पढ़ पाएंगे, मैंने उनसे बोला कि एक बार आप पढ़ सकते हो या नहीं, आओ हम मिलकर पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास के चरण थे वो अपने आप में एक इस तरीके से बंधे हुए थे कि हर एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी से अंतर संबंध और ये देखना कि क्या हम सभी स्किल्स को लेते हुए काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कहीं हमारी क्लास ऐसी तो नहीं है कि मेजरली रीडिंग फोकस्ड ही हो गई है। फिर एक ये था बच्चों से सवाल पूछना कि कहानी में क्या क्या चीज़ें हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्या बच्चे उस कहानी को अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर भी पा रहे हैं या नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कहानी को उन्होंने किस रूप में समझा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पूछा था कि उसने पत्ती खाई तभी उसका पेट दर्द क्यों ठीक हुआ, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा था कि बच्चों ने कहानी को किस तरीके से समझा है। फिर जो आकलन के लिए जो मैंने तरीके यूज़ लिए थे वो आकलन के लिए जो मैंने तरीके यूज़ लिए थे उसमें मेरा एक तरीका ये था कि कुछ बच्चों का नाम बोल के उनसे पूछना, और आगे का जो मेरा चरण ये रहेगा कि मैं आगे जाके इसको अपनी डेली ऑब्जर्वेशन डायरी में लिख लूँगी कि इन बच्चों का इस कहानी पर इस सवाल पर इस तरीके का रिस्पॉन्स रहा था। ये ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये क्लास अपने आप में एक पूरी क्लास थी, ऐसा नहीं है। इस क्लास के आगे के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस आएंगी, जैसे अब इसी की एक नेक्स्ट स्टेज होगी। जो आज हमने कहानी बच्चों से उंगली वाचन किया था वो मैंने बताया था और बच्चों ने उंगली वाचन किया था। अब रहेगी वो शेयर्ड रीडिंग रहेगी, जिसमें बच्चे अपने उपसमूह में बैठ के पठन की जो गतिविधि है उसको पूरा करेंगे और कुछ जो नए वर्ड्स हैं उसको खुद पढ़ के समझेंगे। फिर इसमें मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो बच्चों के साथ में बच्चों ने जिस तरीके से भी कहानी को समझाए उसको राइटिंग के एक फॉर्म में लेकर आना रहेगा। आई होप आपको ये क्लास अपनी आगे की लेसन प्लानिंग में जो कि स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड है उसमें आपको ये मदद करेगी।